So anyone, कोई confusion? Order. कोई confusion? मैरिटाइम डिस्प्यूट में हमने डिस्कस किया था कुछ. यू वांट टू रीविजिट, री आस्क एनीथिंग? हम लिखना शुरू करते नहीं तो. हाँ चलो फिर शुरू करते हैं. चलिए एवरीवन स्टार्ट राइटिंग. Pivot to Asia, Karan. Pivot to Asia was a policy in which US tried to bring the neighbor of China in its fold. And who are the neighbor of China? The Asian countries. That's why it is called Pivot to Asia. Means US will become the pivot in the entire Asia against China. ठीक है, चलिए लिखना शुरू करिए. It was Mearsheimer. It was Mearsheimer. हाँ मैरीटाइम इशू ही लिख रहे हैं हम. मैरीटाइम इश्यूज में क्या हुआ इतना लेट के दौड़ते हुए आए हो? इसके पहले कोई क्लास नहीं है क्या आप लोगों की? अच्छा सी सेट की होती है. इंडिया चाइना मैरीटाइम इश्यूज में हम लिख रहे हैं. और फर्स्ट इंफॉर्मेशन इस फ्राइडे टेस्ट होगा. ठीक है, इस फ्राइडे दे विल बी अ टेस्ट. टॉपिक एक क्वेश्चन कहते हैं हमने क्या क्या किया अभी तक. पाकिस्तान किया है और बांग्लादेश, श्रीलंका. तो एक एक क्वेश्चन होगा तीनों पे. सारा में तो बहुत कुछ आता है. ब्रॉड क्वेश्चन होगा ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, और ये इसे आप समझिए इट्स प्रैक्टिस, रियल टेस्ट नहीं है. इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस, हाउ टू राइट. क्योंकि देन वी विल डिस्कस इन क्लास कि कैसे लिखना चाहिए था. वंस यू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ राइटिंग फिर हम रखेंगे प्रॉपर टेस्ट टाइम लिमिट के साथ. अभी तो मेन हमारा एफर्ट रहेगा बिल्डिंग आंसर राइटिंग. ठीक है सर. फ्राइडे को आ रहा है कि टेस्ट है? यस फ्राइडे को रिटन टेस्ट. इंडिया श्रीलंका बांग्ला एक एक क्वेश्चन होगा तीनों पे. चलिए शुरू करें लिखना. लिखिए क्या लिखा है हमने. व्हाट वी हैव रिटन. it was Mearsheimer. It was Mearsheimer, comma, who in his work with inverted commas, tragedy of great powers. Who in his work tragedy of great powers predicted that China will be the new threat. That China will be the new threat to US supremacy. China will be the new threat to US supremacy in the world. He further argued, supremacy in the world, full stop. He further argued that the rise of China will not be peaceful. The rise of China will not be peaceful. Full stop. So the Thucydides trap. Thucydides trap. We had discussed that earlier. So the Thucydides trap. Yes, हमने पहले पढ़ा था ना Thucydides trap. So the Thucydides trap is the inevitable reality. So the Thucydides trap is the inevitable reality. Full stop. Next para.
In this context, US started. In this context, US started the pivot to Asia. US started, within inverted commas, pivot to Asia. Inverted comma close, policy. Pivot to Asia policy, comma, AKA, also known as AKA the rebalancing. AKA the rebalancing. Subheading, Asia pivot policy. Subheading, Asia pivot policy. Subheading, Asia pivot policy. Within this write down, it has following components. It has following components. Number one, bilateral security alliances. Number one, bilateral security alliances. Number two, expansion of trade. Expansion of trade and investment. Expansion of trade and investment. Number three, alliances of democracies. Number three, alliances of democracies. Number four, increasing US military presence. Increasing US military presence in US military presence in Asia. US military presence in Asia. ठीक है, अब पैरा की फॉर्म में लिख के नेक्स्ट पैरा में करते हुए, विद इन दिस नेक्स्ट पैरा, द बेसिक एम ऑफ दिस पॉलिसी, the basic aim of this policy was to bring Chinese neighbor. The basic aim of this policy was to bring Chinese neighbor near to US. Chinese neighbor near to US than China. Near to US than China. Full stop. Under this, continue writing. Under this, USA also propagated. Under this, USA also propagated the idea that the rise of China. USA also propagated the idea that the rise of China is not in the favor of its neighbors. Is not in the favor of its neighbors. Full stop. Continue writing. It was first proposed. It was first proposed by Hillary Clinton. It was first proposed by Hillary Clinton, comma, former Secretary of State, USA. Hillary Clinton, former Secretary of State, USA, in her article, former Secretary of State, USA, in her article titled, inverted commas में लिखिए, in her article titled America's Pacific Century. America's Pacific Century. Okay. Next subheading, string of pearls.
next subheading string of pearls. America's Pacific century. Next subheading string of pearls. Within this, write down China as a counter. China as a counter to US Asia pivot policy. China as a counter to US Asia pivot policy initiated OBOR, or in capital OBOR. Initiated OBOR within bracket one belt one road. Initiated OBOR within bracket one belt one road, comma, which is now known as BRI. One belt one road within bracket one belt one road, comma, which is now known as BRI within bracket Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative. Full stop. Next para. US Department of Defense. US Department of Defense published a journal. US Department of Defense published a journal titled, within inverted commas, write down, Energy Futures in Asia. US Department of Defense published a journal titled Energy Futures in Asia. Full stop. In this journal, USA propagated. In this journal, USA propagated the idea of a string of pearls. USA propagated the idea of a string of pearls. अब within string of pearls subheading लिखिए meaning of a string of pearls. Within string of pearls subheading meaning of string of pearls. Meaning of string of pearls. Within this, write down US argued that China is investing. US argued that China is investing in commercial ports, PORTS, ports. China is investing in commercial ports, full stop. These ports can be converted. These ports can be converted into military ports easily. These ports can be converted into military ports easily. Full stop. The location of these ports, if connected, will create a kind of string. The location of these ports, if connected, will create a kind of string. ठीक है, तो कनेक्ट करेंगे तो स्ट्रिंग बन जाता है. फुल स्टॉप. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पल्स. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पल्स. डन एवरीवन ऑनलाइन? बिल्कुल
देखिए हर्ष, अगेन मैंने फिर बोला, देखिए थिंग इज यू रियलाइज, यू डी रियलाइज, जैसे हमने बोला ना कॉमन सेंस लेते हैं. फॉर एग्जांपल यू आर इन अ ग्रुप, समबडी इज इंसल्टिंग यू, you realize insult हो रही है, but you don't take action, because once you take action you make it known to everyone कि you know you are being insulted. फिर एक आपका दोस्त आता है, आपको बताता है भाई तेरी इंसल्ट हुई है. So that's USA. हमें भी रियलाइज था, नो डाउट, बट यूएसए केम एंड इट मेक इट एविडेंट कि हाँ भाई तू ये हो रहा है, एंड इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड कि हाँ भाई हो रहा है. ठीक है, तो ठीक है, तो मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स सबको क्लियर है. अब नेक्स्ट लिखिए पर्पस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स. सब हेडिंग पर्पस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स. Within this item, according to US, क्या? According to US, according to US, this policy aims. According to US, this policy aims to encircle India. According to US, this policy aims to encircle India. ठीक है, next subheading, China's argument. Next subheading, China's argument. Within this write down, China argues that they have no intention. China argues that they have no intention of containing India. That they have no intention of containing India, full stop, according to Harsh V. Pant. According to Harsh V. Pant, P-N-T Pant, China will never acknowledge. According to Harsh V. Pant, China will never acknowledge that it want to contain India. China will never acknowledge that it want to contain India because the acknowledgement of containment, means India is equal to China. Acknowledgement of containment means India is equal to China. लॉजिक क्लियर है ना? चाइना इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करेगा बिकॉज यू कंटेन एन इक्वल पावर. जो आपका सबऑर्डिनेट है आप उसे क्यों कंटेन करेंगे? जैसे पाकिस्तान के केस में हम कभी नहीं बोलते दैट वी विल टेक दिस एक्शन. छूटते क्या बोलते हैं? हम पीट पीट के लाल कर देंगे. बट वी सिंपली से ना कि अगर इफ यू ट्राई एनीथिंग इन जम्मू कश्मीर, हम बलूचिस्तान निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे. चाइना के केस में हम ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते. द काइंड ऑफ अग्रेशन वी शो व्हेनेवर पाकिस्तान इज इन क्वेश्चन, same aggression no politician of India shows whenever China is in question. In fact, even the politician does not say anything. To the extent, if you remember, the earlier incursion हुआ था, प्राइम मिनिस्टर शायद कोरोना के टाइम पे, he said ना ही कोई आया है ना ही कोई घुसा है. अगर यही पाकिस्तान होता, चाहे वो आया भी नहीं होता, he will be like अभी पीटने जा रहे हैं हम. फर्क ये होता है कि you never acknowledge somebody as your equal. और चाइना कभी एक्नॉलेज नहीं करेगा दैट इंडिया इज इट्स इक्वल, बिकॉज चाइना वांट्स टू compete with US, not India. China do want to contain India, but it want to compete with US. The same way we want to compete with China, not Pakistan. बात क्लियर हुई? तो अपने से सबऑर्डिनेट पावर को आप कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते. सेम एग्जांपल देखिए, when India acquired nuclear weapon, all the countries put sanction on India except China. जबकि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में we gave China as the reason. When the world asked why you developed nuclear weapon, we said because China has nuclear weapons. And China did not say anything. The reason was it wants to show I don't care. It wants to show China, India
न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर इज नॉट माई मैच, सो आई डोंट केयर। बात समझे? इट्स सिग्नलिंग बहुत होती है डिप्लोमेसी में, एवरी वर्ड दैट यू स्पीक सिग्नल्स अ लॉट। तो व्हेन प्राइम मिनिस्टर सेड नो, कोई आया कोई नहीं आया है, कोई नहीं घुसा है वाला, तो इट बेसिकली आर गिविंग अ काइंड ऑफ क्लीन चिट। खुल के बोलते आया है, पीट के भगाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब वो इंकर्जन करेंगे भी तो भी अकाउंट नहीं होगा। और यू सी सेम काइंड ऑफ अग्रेशन इस व्हेनेवर पाकिस्तान इज इन क्वेश्चन, यू सी द अग्रेशन इन पॉलिटिशियंस, उनकी भाषा देखिएगा। एंड व्हेन चाइना इज इन क्वेश्चन, तब उनकी चुप्पी देखिएगा, ठीक है। सेम आप यूएस के चाइना के इसमें देखिए, चाइना जब यूएस की बात आती है इट सेज अ लॉट बट डूज नन। जब इंडिया का केस आता है इट सेज लेस एंड डू मोर। इट विल नेवर एक्नॉलेज दिस कंटेनमेंट पॉलिसी बिकॉज इट विल सिग्नल, यूएस चाहता है कि चाइना एक्नॉलेज करे इस पॉलिसी को, बिकॉज इट विल पुट इंडिया एज इक्वल टू चाइना इन द वर्ल्ड्स व्यू, विच चाइना विल नेवर एक्नॉलेज। बात क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट लिखिए, प्रोजेक्ट्स अंडर स्ट्रिंग ऑफ पल्स। प्रोजेक्ट्स अंडर string of pulse. Projects under string of pulse. Number 1, Henan Island in South China. Henan Island in South China Sea. Henan Island in South China Sea. Next, Woody Island. Yes, Woody Island. Woody Island airstrip. Airstrip. Woody Island airstrip. Next, Coco Island, Myanmar. Coco Island, Myanmar. Coco, हाँ एयर स्ट्रिप दमन, एयर स्ट्रिप। नेक्स्ट इज कोको आइलैंड, म्यांमार। आफ्टर दैट डीप सी पोर्ट इन म्यांमार, डीप सी पोर्ट इन म्यांमार। नेक्स्ट इस्थुमस ऑफ करा। इस्थुमस सबको पता है ना, बट इस्थुमस कुछ आइडिया है ज्योग्राफी के टर्म में? यस, जैसे द वे यू हैव स्ट्रेट, स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग बिग वाटर बॉडी, सेम इस्थुमस उसका लैंड पार्ट बन जाता है, नैरो लैंड कनेक्टिंग टू बिग लैंड। ठीक है, क्या लाइक इंडिया, लाइक इफ यू कंसीडर बांग्लादेश एज अ वाटर and China as a water, then you can call Siliguri corridor as the isthmus of India. North South America. हाँ, नॉर्थ साउथ अमेरिका, जैसे पनामा कनाल वगैरह जो आपकी है। चलिए नंदलेस, तो isthmus of Kara in Thailand, isthmus of Kara in Thailand, yes, KRA in Thailand. Next, deep sea, next is deep sea container port in Hambantota, deep sea container port in Hambantota, Sri Lanka, in Hambantota, Sri Lanka. Next, deep sea port, deep sea port in Gwadar, Gwadar, Gwadar. Deep sea port in Gwadar, Pakistan. Next, military base in Djibouti. It is in Horn of Africa. It's a country. Military base in Djibouti. D-I is silent. Military base in Djibouti, within bracket Horn of Africa. ठीक है, so these are some project under string of pulse. ये कन्वर्टेबल है, देखो हम्बनटोटा तो क्लियरली मिलिटराइज्ड है। हमने, अच्छा आप थे नहीं, हमने शुरुआत में लिखा है दैट स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी यूएस जो एडवोकेट कर रहा है उसमें कह रहा है कि दे आर बिल्डिंग कमर्शियल पोर्ट्स, लेकिन दे आर कन्वर्टेबल टू मिलिट्री इजीली। मतलब ये जहां-जहां पे इधर चाइना ने इन्वेस्ट किया होगा और ये रिपे नहीं कर पाए तो इन्होंने चाइना ने हथिया लिया।
चलिए अब लिखिए इंडियाज रिस्पॉन्स, सब हेडिंग, ये सारा स्ट्रिंग ऑफ पल्स में हम लिख रहे हैं। इंडियाज रिस्पॉन्स, इंडियाज रिस्पॉन्स, विद इन दिस राइट डाउन इंडिया बिलीव्स that China has India believes that China has a string of pearls policy. India believes that China has a string of pearls policy. What does the string of pearls policy means exactly? रामायण खत्म होने में राम पूछ रहे हो हैं? अरे लिखा तो कितनी बार, देयर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट विच आर बीइंग डन बाय चाइना, और यहाँ पे आपका इंडिया, दिस इंडियन ओशन। इफ यू कनेक्ट ऑल दिस प्रोजेक्ट्स, इन सर्कल कर रहा है। यस, नॉर्थ में तो हमें पता ही है ऑलरेडी, वी हैव पाकिस्तान एंड चाइना, तो नॉर्थ में तो वी आर ऑलरेडी कंटेन्ड, नॉर्थ में इंडिया इज कंटेन्ड। साउथ में इन इंडियन ओशन इंडिया कंटेन्ड नहीं है। हाँ, फील्डिंग लगा रहा है, यस, फील्डिंग लगा रहा है, हम काउंटर फील्डिंग लगा रहे हैं, वो लिख रहे हैं हम। इंडिया बिलीव्स दैट, क्या लिखा हमने, वी हैव रिटन China has a string of pearls policy, full stop. It has initiated, full stop, it has initiated its counter string of pearls. It has initiated its counter string of pearls. Full stop. Following are the projects. Full stop. Following are the projects in India's string of pearls, counter string of pearls, sorry, in India's counter string of pearls. In India's counter string of pearls. Number one, full-fledged naval base. Number one, full-fledged naval base in Andaman Nicobar. Full-fledged naval base in Andaman Nicobar. Next, a listening port. A listening port in Madagascar. A listening port in Madagascar. Next, a listening port means radar, sonar ports are there which can listen in the entire ocean. If there is any ship, there is any submarine, we will get to know first. Listening port in Madagascar. Next, maritime cooperation with Seychelles. Maritime cooperation with Seychelles. Maritime cooperation with Seychelles. Next, radar station in Maldives. Radar station in Maldives. Next, leasing, L-E-A-I-S-I-N, leasing of Agalega Island. Leasing of Agalega Island in Mauritius. Leasing of Agalega Island in Mauritius. Next, Stui Port. Stui Port in Myanmar. Stui Port in Myanmar. लीजिंग आइलैंड हम लीज पे ले रहे हैं, देन वी विल डेवलप वट एवर वी वांट ऑन द आइलैंड, इसलिए काउंटर। Stui Port in Myanmar. Next, airstrip. Next, airstrip. हाँ, वो अपोज कर रहा है, इसमें डिस्प्यूट चल रहा है। द कंट्रीज बेसिकली ये सेट सेशल्स में डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है? ऑल द आइलैंड्स दैट वी आर ट्राइंग टू टेक इन द इंडियन ओशन ना, अब वो लोग डर रहे हैं, दे डू नॉट वांट टू बिकम विक्टिम ऑफ ग्रेट पावर्स।
जैसे हम जब आजाद हुए थे, वी वर कंसर्न बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, हम किसी का पॉन नहीं बनना चाहते थे। सेम ये जो बाकी कंट्रीज है, सेशल, मॉरिशस, दे डू नॉट वांट टू बिकम द पॉन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो इसलिए डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, क्या लिखा लास्ट हमने? एयर स्ट्रिप एंड दम पोर्ट, क्यू इज साइलेंट हियर। एयर स्ट्रिप एंड दम पोर्ट, क्यू इज साइलेंट इन ओमान। Airstrip and dum port in Oman. Last, Chabahar port in Iran. Chabahar port in Iran. Chabahar port in Iran. ठीक है, डन एवरीवन? अब लिखिए इंडियाज पॉलिसी इनिशिएटिव्स। इंडियाज पॉलिसी इनिशिएटिव्स। कौन सा? मताला एयरपोर्ट? वो बेसिकली हम हम्मन टोटा पे नजर रखने के लिए लिया है हमने। करना है तो कर लो, अब इतने सारे हो गए थे। मर्जी है। ओमान में ही है स्ट्रिप, एयर स्ट्रिप वहां पे हमारे ओमान में ही है। एक्सेस है हमारे पास टू हैव आवर प्लेन लैंडेड देयर। देता है जिस देश के नेता अपनी जनता की परवाह नहीं करते, यूजली नहीं देते। पर हमारा यूएस के, देखिए पूरे दुनिया में एयर बेस है। जिबूती जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, वहां पे यूएस का फुल फ्लैजेड मिलिट्री बेस है जिबूती में, उसी के पास में चाइना ने बनाया। तो कीप दिस इन माइंड, चाइना इज नॉट काउंटरिंग इंडिया। चाइना कंसीडर इटसेल्फ एज अ कंपटीशन टू यूएस। कौन नाम के रिपब्लिक? देखिए कई चीजें हमें करनी पड़ती है। अभी हमने इंडिया यूएस नहीं करा है, यूएस के साथ हमने ऑलरेडी अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, पैका वगैरह, पैका, सिस्मोआ, कॉमकासा, ये अग्रीमेंट हम करेंगे इंडिया यूएस का। हमने यूएस को मिलिट्री एक्सेस दे दिया है। अगर मान लीजिए कल वॉर होती है इंडिया यूएस चाइना में, तो यूएस कैन यूज आवर मिलिट्री एयर बेसिस। उसके साथ वी हैव साइन नेवल पैक्ट, वो अभी हम लिखने वाले हैं। नेवल पैक्ट हमने साइन किया फ्रांस यूके के साथ, विच इज म्यूचुअल। वी कैन यूज देयर नेवल बेसिस, दे कैन यूज आवर नेवल बेसिस। तो इसे बोलते हैं अलायंसेस। कोई सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जी कौन? छोटे, ऑफ कोर्स ये कहाँ कंपीट करेंगे, बट वो नहीं कह रहा। बट द थिंग इज, उनको सिंपल सा, देखिए उन्होंने यूएस को भी बेच दिया, चाइना को भी बेच दिया। देखिए ना, वो सीधा बजट यूएस चाइना 5 मिनट कर लिया। मैं समझा नहीं था, मन क्वेश्चन क्या है? चाइना, यूएस चाइना को आइसोलेट करने की जगह बड़े बाकी कंट्रीज के साथ कंसोलिडेट नहीं कर रहा। कहाँ नहीं कर रहा? क्वेश्चन टाइप कीजिए, क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, पूछना क्या चाह रहे हैं। अच्छा हमने लिखा क्या है? इंडियाज, हाँ बोलो भाई, आपका भी क्वेश्चन बोलो। यूएस और चाइना के बीच में वॉर होगी तो इंडिया को यूएस से सपोर्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, कुछ नहीं होता है। कीप दिस इन माइंड, आप कितने भी एग्रीमेंट साइन कर ले, दे आर ऑल आर पीस टाइम अग्रीमेंट। मैं हर बार कहता हूँ, ऑल अग्रीमेंट दैट यू साइन ना, दे आर पीस टाइम अग्रीमेंट। वॉर के टाइम में आप ओबे करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। जैसे यूक्रेन में वी आर मिलिट्री पार्टनर विद यूएस, यूएस वहां पे है पर हम नहीं है। हमने बोला हमारा इंटरेस्ट नहीं, निकलते बनो। वो तो वॉर बताएगी। और मैं फिर कहता हूँ, नो बडी विल कम टू इंडियाज असिस्टेंस। यूएस भी नहीं आएगा अगर वी विल नॉट गिव समथिंग टू यूएस। अगर यूएस का कोई इंटरेस्ट हम लेके बैठे हो तो यूएस मदद करने आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि इंडिया को वो पसंद करता है। वही मैं कह रहा हूँ, वो नहीं आएगा जब तक वी विल गिव इट अ रीजन which will jeopardize its national interest। कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं if India is not there then China will become a new threat, तो यूएस आ सकता है कि भाई अभी मैंने इंडिया के केस में I can save myself, अगर चाइना अकेला बचा तो कैसे बचाऊंगा? तो I am saying nobody will come to anybody's assistance जब तक you have some national interest involved। सर इंडिया चाइना वॉर में यूएस का इंटरेस्ट होगा ना? तो बोल रहा हूँ भाई, वॉर के वक्त पता लगेगा। जो सुपर पावर को मिलके अलाइड करके हरा सकता है। हर्ष ने सही बोला, प्रॉब्लम के टाइम रिश्तेदार नहीं आते, कंट्री क्या आएगा। ठीक है, ये बात भी सही है।
है इंडिया पॉलिसी समथिंग हमने एडिंग बोला था, वी पूछ लेकिन सर मतलब यूएस इतना चाइना को आइसोलेट करना चाहता है। हाँ यस बिल्कुल अग्रीमेंट कर रहा है, पर अभी वीक हो रहे हैं क्योंकि चाइनीज अग्रीमेंट अभी चलता रहेगा। देखिए कोई एवरी कंट्री इज अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, उन्हें जहां लगता है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बेनिफिट होगा अंबर, आई टोल्ड यू ना, इट्स अ पॉलिसी बेट एंड ब्लीड। अभी क्या हुआ, बेट एंड ब्लीड ही तो हुआ। इंडिया को पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है, बट इंडिया वाज नॉट एक्नॉलेजिंग, पर यूएस ने बताया देखो भाई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चल रहा है, एंड वी सेड हाँ भाई चल रहा है। दिस इज कॉल्ड बेट एंड ब्लीड इन फॉरेन पॉलिसी। जैसे आप यूक्रेन केस में देखिए क्या हो रहा है, यूक्रेन में चाइना रशिया एंड यूक्रेन आर डिस्ट्रॉइंग ईच अदर, और बेनिफिशियरी यूएस निकलेगा। चाहे यूक्रेन हारे या जीते, विक्टर यूएस ही होगा, क्योंकि दोनों केस में रशिया डिफीट हो जाए। अगर हार गया तो बिल्कुल ही खत्म, जीत गया तो भी रशिया डिफीट हो जाएगा। तो ओनली विक्टर इन दिस वॉर इज यूएस, चाहे लड़े कोई भी। तो इंडिया चाइना में लड़े कोई भी, द ओनली विक्टर विल बी यूएस। चलिए नंदलेस, हाँ क्या लिखा हमने, इंडिया पॉलिसी इनिशिएटिव आई बिलीव, लिख लेते हैं। नंबर 1 नेवल डॉक्ट्राइन, पॉलिसी इनिशिएटिव में नंबर 1 नेवल डॉक्ट्राइन। within this side down, Indian government has revised its naval doctrine. I don't क्लास कितने बजे तक है, 12, ठीक है। India has revised its naval doctrine in 2015, to state, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, to state ensuring secure seas, to state ensuring secure seas is the goal. Ensuring secure seas is the goal of India's naval strength. Ensuring secure seas is the goal of India's naval strength. Full stop. It means India sees itself. It means India sees itself as a net security provider. India sees itself as a net security provider. Next, five-fold framework. Next is five-fold framework of maritime diplomacy. Five-fold framework of maritime diplomacy. ये वो हमने पढ़ा ना, सागर, CSR वगैरह, ये वही है। As a net security provider, it's a country which provides more security than it takes. A five-fold framework, क्या लिखा है? Five-fold framework of maritime diplomacy within this side down. Government of India has launched five-fold framework. Government of India has launched five-fold framework of its maritime engagement. Five-fold framework of its maritime engagement. Number 1, इसमें सब कंपोनेंट्स में लिखना है। नंबर 1 या ए कर दीजिए जो भी हो। नंबर 1 इज सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। नेट, नेक्स्ट नहीं ललिता, नेट, अरे यार बहुत कंफ्यूजन है। नेट, NET, net security provider means a country which give more security to the world than it takes from the world. A net बैलेंस कर, नेट करते हैं ना, ग्रॉस नेट वाला नेट। चलिए
हाँ, so number one is Sagar within bracket security and growth for all in the region. Security and growth for all in the region. Point number two, within we are writing within five-fold framework. Second है deepening security cooperation. Second is deepening security cooperation. Deepening security cooperation with the region. Deepening security cooperation with the region. C. Multilateral. Third is multilateral cooperative maritime security arrangement. Multilateral cooperative maritime security arrangement. Full stop. For example, Quad. Full stop. For example, Quad and IORA. Quad and IORA. इन दोनों पे हम शॉर्ट नोट लिख लेंगे बाद में. For example, Quad and IORA. Next point. Sustainable economic development. उसी में चल रहा है, 5 लिखेंगे ना. सस्टेनेबल आयोरा, इसे अभी करेंगे. आयोरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, करेंगे हर सभी. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब लास्ट 5 फ्रेमवर्क्स में लास्ट है हमारा कॉपरेशन विद मेजर पावर्स. कॉपरेशन विद मेजर पावर्स. अब लिखिए थर्ड. हमने 2 लिख चुके हैं. फर्स्ट क्या लिखा था हमने, मैं तो हाँ फर्स्ट नेवल डॉक्ट्राइन था, सेकंड 5-fold फ्रेमवर्क था. अब नेक्स्ट लिखिए प्रोजेक्ट मौसम. प्रियांशी फिफ्थ विद इन 5-fold फ्रेमवर्क में फिफ्थ था कॉपरेशन विद मेजर पावर्स. क्या, हाँ मौसम, कॉपरेशन विद मेजर पावर्स. तीसरा है प्रोजेक्ट मौसम. अरे हाँ भाई सही में मौसम है यार. प्रोजेक्ट मौसम. इसमें क्या है, द नेम इम्प्लाइज मौसम बनाए रखना, पार्टी करते रहना. ठीक है. तो बेसिकली इसका लॉजिक ये है, वी विल ट्रेस एंशिएंट राउट्स बिकॉज इफ यू सी विद एंटायर इंडियन ओशन वी यूज्ड टू डू ट्रेड. इसीलिए तो इस ओशन का नाम इंडियन पड़ा था, because India was the epicenter of trade. So under this, the government of India will trace the ancient roots of trade and commerce. This is over the board. Actual purpose is bringing the Indian Ocean neighbor near to India's economy. If they will be more near to India than China, then we will be sure that China will never be present in Indian Ocean. Clear है प्रोजेक्ट मौसम? प्रोजेक्ट मौसम में we will, इसका जो गवर्नमेंट लॉजिक है, गवर्नमेंट लॉजिक गिव्स दैट in all the Indian Ocean countries we used to trade. Ancient trade होती रहती थी हमारे बीच में. So the under this we will retrace the old origins. Basic logic is we will get more economic interaction. Trade and commerce हम बढ़ाएंगे इसमें. But real purpose क्या था? Real purpose is if the countries of Indian Ocean will trade more with India, will get more close to India's economy vis-a-vis China. That's the purpose. Clear है? लिखिए. Impossible. चलिए प्रोजेक्ट मौसम में राइट डाउन, बाकी बातें बाद में. इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव. It is a government initiative to bring the Indian Ocean countries. It is a government initiative to bring the Indian Ocean countries near to India's economy. Near to India's economy than to Chinese economy. Than to Chinese economy. ठीक है. नेक्स्ट इंडियन, yes, Indian Ocean countries near to India's economy than Chinese economy. Next, ions.
Next is IONS. Within bracket, Indian Ocean Naval Symposium. IONS. Within bracket, Indian Ocean Naval Symposium. Yes, Harsh. Fourth, Indian Ocean Naval Symposium. कुछ नहीं है, it's a Indian Navy's initiative जहाँ पे we will bring all the countries navy together, joint exercise करते हैं. ठीक है. Indian Ocean Naval Symposium. एक लाइन लिख लीजिए, a joint exercise initiative. A joint exercise initiative of India. A joint exercise initiative of India. अब फिफ्थ और लास्ट लिखिए क्वाड. आयोरा नहीं लिखा ना अभी तक हमने. हाँ, आयोरा लिखना है, इसके बाद आयोरा होगा. क्वाड. क्वाड ब्रैकेट में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अरेंजमेंट. सिक्योरिटी अरेंजमेंट. Within start writing. This grouping was envisaged. This grouping was envisaged by the former Prime Minister of Japan. This grouping was envisaged by the former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. Former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. In the wake, after the Shinzo Abe, after the 2004 tsunami. Shinzo Abe after the 2004 tsunami, full stop. However, because of China's resistance, this grouping was not convened. Because of China's resistance, this grouping was not convened. ठीक है, full stop. Next para. Ultimately, because of China's resistance, this grouping was not convened. Full stop. Next para. Ultimately, in 2017, East Asia Summit. Ultimately, in 2017's East Asia Summit, first formal talk of Quad members took place. First formal talk of Quad members took place. ठीक है, इसमें लिखिए नेक्स्ट सब हेडिंग. विद इन दिस क्वाड सब हेडिंग 4 डायमेंशंस ऑफ क्वाड. नहीं लिखो भाई, आज बहुत लिखना है. मैं किसका एग्जिस्टेंस? इकोनॉमिक. इनिशियली हमने स्टार्ट किया था मैरीटाइम डिप्लोमेसी की फॉर्म में, कि मैरीटाइम डिप्लोमेसी होगी. हाँ, मेन ऑब्जेक्टिव मैरीटाइम डिप्लोमेसी ही था इसका स्टार्टिंग में, कि वी विल कम टुगेदर, मैरीटाइम डिप्लोमेसी होगी एंड वी विल टेक केयर ऑफ कोई डिजास्टर. जैसे सुनामी आया था तो ऐसा वो जब था, दोनों चीजें थी. इसका स्ट्रेटेजिक डायमेंशन नहीं था, स्टेटेड पर्पस, बट रियल पर्पस सबको पता था. चाइना ही रीजन था, तभी तो चाइना ने इसका रेसिस्टेंस किया बहुत ज्यादा. उस समय में वी वर नॉट इन पोजीशन टू डायरेक्टली टेक ऑन चाइना. यूएस भी नहीं था, तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो यार. बट फिर 2017 में हमने कहा भाई अब तो टाइम आ गया है, वी हैव टू स्टार्ट. तो ये आइडिया शिंजो आबे का था 2004 में. चाइना काउंटर बाय यूएस. हाँ, ऑफ कोर्स, वेट एंड ब्लीड, इंडिया विल बी द फ्रंट रनर ऑफ यूएस अगर चाइना से कुछ सीन होगा तो.
चलो देखते हैं। लिखिए, सब हेडिंग लिखनी है 4 डायमेंशंस ऑफ क्वाड। 4 डायमेंशंस ऑफ क्वाड बाय राजीव भाटिया। है, था नहीं भाई, है, स्कॉलर है। 4 डायमेंशंस ऑफ क्वाड। कहीं तुम वो तो नहीं सोच रहे कांग्रेस का जो स्पोक पर्सन था? किसका भाई पता नहीं मुझे, इतना नहीं पता मुझे। 4 डायमेंशन ऑफ क्वाड बाय राजीव भाटिया। नंबर 1, इंडिया यूएस टाइज। नंबर 1, इंडिया यूएस टाइज। नंबर 2, इंडिया यूरोपियन टाइज। नंबर 2, इंडिया यूरोपियन टाइज। विद इन इंडिया यूरोपियन टाइज लिखिए, EU has unveiled, EU has unveiled the Indo-Pacific strategy. EU has unveiled the Indo-Pacific strategy. The Indo-Pacific strategy aims to promote democracy and human rights. Aims to promote democracy and human rights. Aims to promote democracy and human rights. Third dimension, the ASEAN dimension. Third लिखिए, the ASEAN dimension. Fourth, the Pacific dimension. Fourth, the Pacific dimension. ठीक है, so these are the 4 dimension of quad according to राजीव भाटिया. पैसिफिक में we will go for Pacific engagement, Pacific countries से. आसियान में we will go for engagement with ASEAN countries. ठीक है, EU के साथ. तो 4 डायमेंशन है according to राजीव भाटिया of quad. One is India US, second is India Europe, third is India ASEAN, and fourth is India and the Pacific. क्लियर सबका? बोले किसी को कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो बताइए। डायमेंशंस है ना, कहाँ कहाँ आप एंगेजमेंट, राजीव भाटिया के हिसाब से है दैट इंडिया इज लुकिंग फॉर, इंडिया सी क्वाड इन 4 वेज, इंडिया यूएस, इंडिया यूरोप, इंडिया पैसिफिक एंड इंडिया आसियान। मेन आर्ग्यूमेंट हमारा यही है कि क्वाड इज इकोनॉमिक मैरीटाइम इकोनॉमिक ग्रुपिंग, और बाकी तो हमें स्ट्रेटेजिक पता ही है। चलिए लिख लिया सबने यहां तक? चलिए अब लिखिए, अभी इसमें कंटिन्यू करिए। क्वाड में नेक्स्ट सब हेडिंग डालिए, क्वाड में नेक्स्ट सब हेडिंग, की ड्राइवर्स बिहाइंड क्वाड। बिल्कुल मानेगा, क्यों नहीं। और देखिए अंबर हैज रिटन, क्या यूपीएससी मानेगा राजीव भाटिया के पॉइंट्स? तो पहली चीज, यूपीएससी आपकी ओपिनियन नहीं पूछता है। जब यूपीएससी लिखता है ना डू यू अग्री या व्हाट यू थिंक, तो आप वहां पे आपकी नहीं पूछ रहा वो, आप अपने पर्सनल ओपिनियन लिख के नहीं आएंगे। बहुत से बच्चे लिख देते हैं आई बिलीव दिस, मैंने बहुत पेपर चेक किया उसमें लिख देते हैं यूपीएससी वांट यू टू टेक स्कॉलर्स व्यू। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राजीव भाटिया इज दिस, अकॉर्डिंग टू हर्षवी पंत इज दिस, अकॉर्डिंग टू ब्रह्मचंद्रानी इज दिस। क्योंकि आप इतना नहीं समझते दुनिया को जितना दे समझते हैं, दे एनालाइज द वर्ल्ड। बात क्लियर है? उनके व्यू पॉइंट से लिखना है, अपना पर्सनल कुछ नहीं। क्लियर अंबर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने लिखा की ड्राइवर्स बिहाइंड क्वाड। की ड्राइवर्स, ड्राइवर्स मतलब रीजंस एक तरीके से प्रियांशी। की ड्राइवर्स बिहाइंड क्वाड। पहला पॉइंट, फॉर इंडिया द ढोकलाम कन्फ्रंटेशन, for India the Doklam confrontation with China and the concerns over BRI, confrontation with China and the concerns over BRI, full stop. There is a desire to engage Washington. There is a desire to engage
Washington more closely. More closely. Next लिखिए for US. For US, Quad represent. For US, the Quad represent the policy of. For US, Quad represent the policy of buck passing. Presents the policy of buck passing. Buck passing का मतलब होता है in IR we understand when a country does not confront an enemy. Buck passing जैसे आप हिटलर के केस में देखिए when Hitler was rising, no country, सबको पता था Hitler is a danger, but nobody wanted to confront Hitler first. वो चाहते थे कि हिटलर को रोका जाए, but some other country take the initiative. इसे हम बोलते हैं buck passing. When a country sees a danger rising but does not want to counter it directly, it wants somebody else to counter first. और इस चक्कर में क्या होता है, अपीजमेंट आ जाती है. When you have a threat, counter it at the nascent stage. Earlier stage में it will become a threat. नेटो भी बहुत समय, यूक्रेन क्राइसिस में देखिए, यूक्रेन में आप बहुत समय तक बैठे रहे. अगर आप यूक्रेन को अनेक्स कर लेते, यूक्रेन को नेटो में पहले ले आते, तो रशिया का अटैक ऑन यूक्रेन वाज एन अटैक डायरेक्टली ऑन नेटो. बट यू वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू पास द बक कि रशिया को हमें वीक करना, कौन करेगा, तो यू पास योर बक टू यूक्रेन. नेटो का प्रॉमिस आपने उसे दिया और आपने से बक पकड़ा दिया कि जाओ बेटा लड़ो. एंड नाउ कोई भी इस वॉर में जीतेगा अल्टीमेटली अमेरिका. बात समझ आ रही है? बक पासिंग, when you pass the buck to somebody else so that that person confront the enemy on your behalf because you don't want to confront that enemy directly. तो यहाँ पे बक पासिंग किसके साथ हो रही है? इंडिया के साथ, विज़ावी चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. राधा इज राइटिंग समथिंग बिग, लिखी जा रही है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. फॉर अदर कंट्रीज, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अदर कंट्रीज द मैरिटाइम एंगेजमेंट, for other countries the maritime engagement, the security cooperation engagement, comma, the security cooperation and containment of China. Security cooperation and the containment of China are the key drivers. Containment of China are the key drivers. अब नेक्स्ट लिखिए आयोरा. ये इंडिविजुअली वी विल डू इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली हम समझेंगे, सार्क, बिम्स्टेक एंड ऑल. और ये आर्ग्यूमेंट सही है दैट वी शुड गो फॉर मल्टीलेटरल एंगेजमेंट. जो आपका पॉइंट भी है, इफ यू सी द 5 पॉइंट्स में हमने लिखा है, 5 फोल्ड डिप्लोमेसी जो हमने लिखी है, उसमें वी हैव रिटन मल्टीलेटरल एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट विद ग्रेट पावर्स. तो बेसिकली अगर आप देखें ना, क्वाड क्या है? क्वाड इज अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट अगेंस्ट चाइना ऑन द ईस्टर्न साइड, और वेस्टर्न साइड पे कौन सा है? I2U2. ईस्टर्न साइड पे आपका क्वाड है, वेस्टर्न साइड पे I2U2 है. बट नंदरलेस मैं फिर कहूंगा दीज आर सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ पीस टाइम. वॉर टाइम में इनमें से कौन कहां आएगा कोई गारंटी नहीं है, वो तो वॉर ही बताएगी. चलिए आयंस क्या लिखा, सॉरी, आयोरा, विद इन ब्रैकेट राइट डाउन इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन. इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन. जल्दी जल्दी इसमें लिखिए. इट वॉज फाउंडेड इन एसोसिएशन विद इन, इसमें लिखिए इट वॉज फाउंडेड इन 1977. Was founded in 1977 by the 7 prominent countries. 1977 by the 7 prominent countries of the Indian Ocean.
7 prominent countries of the Indian Ocean, including India and Australia. India and Australia. Full stop. Subheading objectives. IORA में subheading objectives. Subheading objectives. Within the side down, the primary focus is on trade liberalization. The primary focus is on trade liberalization among the RIM countries. Is on trade liberalization among the RIM countries. RIM, RIM. RIM countries. मोर ट्रेड, मोर इकोनॉमिक एंगेजमेंट. देखिए किसी भी ग्रुप को आप बनाएंगे ना तो आप लिखेंगे थोड़ी ना कि चाइना को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है. यू विल नॉट. फ्री ट्रेड माने कि ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री, ऐसा वाला. फ्री ट्रेड हम बढ़ाएंगे, कॉपरेशन वेरियस प्रोडक्ट्स में, गुड्स में, सर्विसेज में, जो भी राह में चलते हैं. ट्रेड का पॉइंट क्यों? टैक्स ही थोड़ा ना ट्रेड होती है. पर टैक्स घटाने से फायदा इकोनॉमी डायमेंशन आ जाती है. इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल इफ देयर टू मोर ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, तो ऑब्वियसली बात है यू विल प्रोड्यूस मोर, यू विल सेल मोर. मैं कंपनी हूँ इंडिया में, इफ आई हैव मोर ट्रेड, ज्यादा पैसा होगा ना, मैं बिजनेस एक्सपेंड होगा, मैं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दूंगा. हालांकि वी विल अंडरस्टैंड जब IMF वर्ल्ड बैंक करेंगे कि फ्री ट्रेड बेसिकली लीड्स टू, हमें पता है क्या करती है फ्री ट्रेड. इट्स अ टूल ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म. हमने समझा था ना, इन द नेम ऑफ फ्री ट्रेड व्हाट हैपेंस, द डेवलपिंग कंट्रीज गो ऑन गोइंग डाउन डाउन डाउन, दैट इज गेट अंडर डेवलप्ड, एंड डेवलप्ड कंट्रीज कीप्स ऑन डेवलपिंग फर्दर. चलो वो तो एक अलग बात है. रिम कंट्रीज माने जो आपके मार्जिन पे होती है, ओशन के मार्जिन पे जो कंट्री होती है. हर्ष चलो यार जल्दी जल्दी लिख ले. लिखिए प्रिंसिपल्स, सब हेडिंग प्रिंसिपल्स. सब हेडिंग प्रिंसिपल्स. विद इन दिस डिसीजन बाय कंसेंसस. Principles, decision by consensus. Second, no rigid structure. No rigid structure. Third, no binding agreement. No binding agreement. Next, मतलब fourth, exclusion of bilateral issues. Exclusion of bilateral issues. ठीक है, तो ये सारा का सारा है. अब लास्ट लिख लीजिए रिमार्क. नाउ वी विल एंड आर स्ट्रिंग ऑफ पल्स. लास्ट लिखिए रिमार्क्स. Within this side down, a book published by Bertil Lintner. A book published by Bertil, T है, F नहीं. A book published by Bertil Lintner argues that the next war. Bertil Lintner argues that the next war between India and China, shall take place in Indian Ocean. Next war between India and China shall take place in Indian Ocean, comma, not on Himalayas. Shall take place in Indian Ocean, comma, not on Himalayas. ठीक है, full stop. Next para. A status book published by Chinese academicians
A status book published by Chinese academicians highlights a status book published by Chinese academicians highlight that India is comprehensively superior. That India is comprehensively superior. हाँ, next पैरा में लिखना है, comprehensively superior than China in Indian Ocean. Is comprehensively superior than China in Indian Ocean. Full stop. It suggested the Chinese government. It suggested the Chinese government to invest more in its navy. More in its navy. Full stop. By this, in the near future, China can dominate Indian Ocean. By this, in the near future, China can dominate in the Indian Ocean. फुल स्टॉप. डन है. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स के अंदर था सारा. अब ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं. प्रीवियस क्लास में हमने लिखा नहीं था, इसलिए आज हम लिख रहे हैं सारा. हाँ, लिखते रहेंगे. लिखो. नेक्स्ट. हर्ष कह रहा है सांस लेने दो. चाइनीज एकेडमिशियंस. कितने घंटे की क्लास है ये सर? 1 घंटे ही तो हुआ है. 1 घंटा 15 मिनट की, 10 मिनट की. चलो ठीक है, 5 मिनट रुक जाते हैं. यस, academicians. हाँ, अब इंडिया ऑफिशियली बोलता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स. डॉक्यूमेंट्स में नहीं, बट स्पीच में आपको मिल जाएगा. स्ट्रिंग ऑफ पल्स हमारे जितने आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जर्नल वगैरह पब्लिश होते हैं, आर्मी वगैरह के, उसमें नाम लिया जाता है स्ट्रिंग ऑफ पल्स. नहीं, वो नहीं है. नेकलेस ऑफ डायमंड अलग है भैया. नेकलेस ऑफ डायमंड एक अलग पॉलिसी है. सागरमाला कहते हैं उसे. वो है नेकलेस ऑफ डायमंड. हीरा, दैट्स नेकलेस ऑफ डायमंड इज सागरमाला. हाँ, बिल्कुल कर रहा है. पर चाइना को हम काउंटर नहीं कर पाएंगे ना यार. उनकी बजट देख रहे हो आप, 600 पता नहीं कितने. आई थिंक 3rd लार्जेस्ट बजट है. हमारा देखिए, फिर वही केस में फंस गए ना. जैसे पाकिस्तान हमारे केस में फंसा हुआ है. हम 60 बिलियन समथिंग इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं, तो वो क्या करते हैं, दे एप्रोप्रिएट मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज इकोनॉमी. अब सेम ट्रैप में हम है चाइना के साथ. अब हम क्या करें? जनता को खाना दें या फिर मिलिट्री को वेपन दें? वी हैव टू बैलेंस बोथ. है जनता क्या है? जनता तो भूखी मरेगी, कोई बात नहीं है. हाउ सिनिकल. हाँ, चाइना हेवीली इस वक्त एयर में तो इतना नहीं, पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नेवी में कर रहा है चाइना. यस, लैंड कॉर्पोरेशंस की भी एनालिसिस है. हम भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे. हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर्स है हमारे पास. पर ये इरादा कि हमारी जो कैपेसिटी है ना, वो आज की है. ठीक है. चाइना की जो हैवी इन्वेस्टमेंट है, इन फ्यूचर में भी 10 ईयर डाउन द लाइंस दिस कुड बी रिवर्स. अभी तो हम पावरफुल है, नो डाउट. इंडियन ओशन में चाइना में काउंटर नहीं कर पाएगा. हाँ, INS चक्रा वगैरह हमने उससे भी ली हुई है, रशिया से ली हुई है, विक्रांत वगैरह है. वी आर डूइंग. इस समय वी आर पावरफुल.
बट ये एडवांटेज डेफिनेट नहीं है। हाँ, लॉन्ग रेंज में चाइना ओवरपास कर जाएगा, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट चाइना की चल रही है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे इन्वेस्ट करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन टू फीड। अगर हम वहां इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, मिलिट्री को सब दे देंगे, तो फिर जनता का क्या करेंगे? हमने मरने छोड़ दें। बैलेंस करना पड़ेगा ना। वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान कि पाकिस्तानी आर्मी कैन कैप्चर द स्टेट एंड देन डू व्हाटएवर दे लाइक। वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान एंड वी शुड नॉट बी। चलो रेस्ट हो गया काफी, करें? कोई हेडिंग डाली है अभी तक हमने? नहीं डाली तो लिख लीजिए, लास्ट हेडिंग फिर से एंड करेंगे, एनालिसिस ऑफ बीआरआई। क्लास में एंड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। डिप्लोमेसी के बारे में किरण अंडरस्टैंड वन थिंग, डिप्लोमेसी जो होती है आपकी इफेक्टिवनेस से जानी जाती है। कुछ केस में मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी काम कर रही है, जैसे म्यांमार के इसमें वी विल से, यूक्रेन में बहुत अच्छा स्टैंड लिया हमने, बट कुछ केसेस में इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब इंडियन मीडिया जो करता है हाईलाइट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द रियलिटी इज फार फेच्ड। कुछ जगह मिडिल ईस्ट में भी हमारी पॉलिसी अच्छी है, जब करेंगे वी विल अंडरस्टैंड द वे वी आर मूविंग टुवर्ड रियलिज्म। अच्छा पॉलिसी है, हर जगह नहीं है। पाकिस्तान के इसमें हमारी बहुत बुरी पॉलिसी है, नेपाल में और भी बुरी है, एंड कुछ जगहों पे बुरी है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता ना, तो पॉलिसी भी परफेक्ट नहीं होती। नेपाल बफर स्टेट पता नहीं क्या है, नेपाल नेपालियों को नहीं पता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उन्हें नहीं पता। आप देखिए फाइट चल रहा है उसमें अभी भी। नेपाल अब सेकुलर हो गया, पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था प्रोक्लेम, अब सेकुलर हो गया। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहां पे टू मच इंटरनल फैक्शनिज्म बहुत है। जब नेपाल करेंगे हम समझेंगे इंडिया इज द बैशिंग पॉइंट इन नेपाल। नेपाल में कुछ भी हो रहा हो, इंडिया बैश होता है। हर इलेक्शन में इंडिया बिकम्स द पॉइंट ऑफ इलेक्शन, कि कौन कितना पपेट है इंडिया का। तो ये इट्स नॉट द बिग थिंग। जो प्रॉब्लम पता क्या होता है, जब लीडर्स खाना नहीं दे पाते ना, तो ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। when they are unable to give you jobs, food and everything, then they use neighbors. जैसे हमारे केस में हम पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं, नेपाल इंडिया का इस्तेमाल कर लेता है। when the leaders are incompetent, वो ये करते हैं। हाँ बिल्कुल सही हर्ष। चलिए क्या लिखा हमने, एनालिसिस ऑफ बीआरआई। इसमें लिखिए, इट वाज एल्फ्रेड टी महान, इट वाज एल्फ्रेड टी महान who coined, it was Alfred T. लिखा तो था पिछली बार हमने, it was Alfred T. Mahan who coined the idea of ocean power. It was Alfred T. Mahan who coined the idea of ocean power. Full stop. It basically means a country which controls. It basically means a country which controls the oceans will control the world. A country which controls the oceans, comma, will control the world. Blue water. Full stop. It is because the majority of the trade, and commerce takes place. Trade and commerce takes place through sea lanes. And anyone who controls these sea lanes, will dominate the world.
these sea lanes will dominate the world. ठीक है, full stop. Next para. Under this context, China launched BRI. Under this context, China launched BRI to uproot USA. BRI to uproot USA as the next superpower. To uproot USA as the next superpower. Full stop. However, to uproot USA as the next superpower. Full stop. However, it argues that the rise of China. It argues that the rise of China is in the favor. The rise of China is in the favor of everyone. Favor of everyone. Next सब हेडिंग डालिए डेट ट्रैप. इसी में एनालिसिस में डेट ट्रैप. Within this write down ब्रह्मचिल्लानी सब हेडिंग है डेट ट्रैप. एवरीवन. चाइना आर्ग्यू करता है इफ आई विल राइज आई विल इन्वेस्ट इन योर कंट्री. मैं जापान में यहाँ वहां इस तरीके से हम थोड़ा ना कह रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज डेट ट्रैप. विद इन दिस राइट डाउन ब्रह्मचिल्लानी इन हिज एनालिसिस of BRI. Brahmachillani in his analysis of BRI argued that the rise of China through investment, that the rise of China through investment is actually the rise of China through debt. Is actually the rise of China through debt. Full stop. Lord John Adam लिखिए. Lord John Adam argued that there are two ways of dominating a country. Hyphen, one by sword, talwar, one by sword and one by debt. The two ways of dominating a country, one by sword or one by debt. Full stop. The way Europeans used gunboat diplomacy. Gunboat मतलब battleship. The way Europeans used gunboat diplomacy during colonialism. Semicolon. Similarly, China is using debt. To colonize the world. Full stop. ठीक है. तो ये है आपका एनालिसिस BRI का. व्हाट आई वाज सेइंग, गनबोट डिप्लोमेसी. आई बिलीव आपको पता होगा जापान के साथ क्या हुआ था. कुछ आइडिया है जापान के साथ क्या हुआ था? कॉलोनियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ था? हर्ष कह रहा क्या हुआ था? कुछ तो हुआ था. हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, जापान वाज नहीं
कॉलोनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, जापान वाज अ क्लोज्ड कंट्री. जापान ने ऑब्जर्व किया हाउ दिस ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एवरीथिंग बिहेव्ड इन इंडिया एंड एवरीवेयर. दे वर वेरी मच कंसर्न कि अगर इन्हें मैंने अलाउ करा टू कम टू माय कंट्री, दे विल कॉलोनाइज मी आल्सो. तो जापान को क्लोज कर दिया अल्टीमेटली उन्होंने. तो उस समय यूएस पैसिफिक कमांड के लीडर्स, दे वेंट विद गनशिप्स एंड दे बॉम्ब्ड, थ्रेटन्ड टू बॉम्ब जापान. कहा कि या तो इकोनॉमी खोलो, नहीं तो हम आपके दरवाजे खोल देंगे, बेसिकली बाय बॉम्ब. तो दिस इज कॉल्ड गन बोट डिप्लोमेसी. अब ये देखिए, बाय ऑन द बेसिस ऑफ स्वॉर्ड ये यूज टू फ्री दैट कंट्री. तो उन्हें फ्री ट्रेड अपनानी पड़ी अल्टीमेटली. इंडिया में फ्री ट्रेड अपनाया कॉलोनिज्म के दौरान. They dominated India economically, politically, and imposed free trade. Japan पे they imposed by gunboat diplomacy. It was very common. So you see, जो भी power होता है ना, they do what they like. China is not doing something बाकी power ने नहीं किया. Europe has done this in entire world. Look at the black slave trade. How the people, आपको I believe आपको पता हो, there used to be human zoos in Europe. यूरोप में ह्यूमन जूस होते थे, इसमें ये अफ्रीकन वगैरह को दे कीप दिस पीपल देयर. जैसे आज आप जानवरों को रखते हैं, द वे दे यूज्ड टू कीप द अफ्रीकन्स देयर. तो ऐसा नहीं है कि दे कम फ्रॉम अ वेरी मॉरल हाई ग्राउंड. व्हेन दे वर पावर, दे डिड द सेम. चाइना इज डूइंग द सेम. डिफरेंस इज दे यूज गनबोट डिप्लोमेसी, चाइना इज यूजिंग दैट. और मे बी हम होते तो क्या पता हम भी करते, अगर हम पे इतनी बड़ी पॉकेट होती. हम पे नहीं है, तो देखते हैं. क्लियर है सबको? ये BRI सब खत्म. कल हम करेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. वाटर ये तो मैरीटाइम था ना. वाटर वो आपका ऊपर वाला. यस राधा, सॉफ्ट कल्चर वाले, सॉफ्ट पावर वाली बात है. चलिए एवरीवन, हैव अ नाइस डे. विल मीट टुमारो अगेन. और फ्राइडे को टेस्ट होगा. कीप एवरीवन इन माइंड, टेस्ट होगा फ्राइडे को. इंडिया पाकिस्तान, अरे मैरीटाइम है भाई. इंडिया एक एक क्वेश्चन होगा. पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, एक एक क्वेश्चन होगा. पाकिस्तान, बांग्लादेश और कौन सा होगा? श्रीलंका हो गया ना हमारा उन तीनों पे. एक मिनट. One thing, it is quite evident China is using them and killing their economy, then why they are letting them do. दमन, अभी मैंने आपको बताया, जैसे हमने समझा नेपाल के केस में, the way we understood in case of Nepal, the thing is when leaders are less concerned about the people, तो यही होता है. आप श्रीलंका में देखिए, it was the Rajapaksa's brother and their अरे धीरे, it was the Rajapaksa's brother and their dislike for India. मेंस होगा अंबर. IR प्री में कहाँ आता है? प्री में एक मेंस टाइप होगा, रिटन टाइप. अरे मैरीटाइम ओवर ओशियंस वगैरह में, वाटर में हम रिवर्स देख लेंगे, जो ऊपर से आ रही है ना, ब्रह्मपुत्र वाला इशू. हाँ, वो इशू देखेंगे. चलो, विद दैट नोट, हैव अ नाइस डे. विल मीट अगेन. अंबर मेंस टाइप.